السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹو ڈے ود ظاہر محمود راہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظاہر محمود راہ۔ آج ہمارے ساتھ گوجرانوالہ کی مایناز شخصیت موجود ہیں، چودھری طارق گجر صاحب کا MP اور ان کے ساتھ میاں تنویر ساحل صاحب۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ چودھری صاحب آپ کیسے ہیں؟ طبیعت سے الحمدللہ ٹھیک فرسٹ ٹھاک کلاس، ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا ہے۔ چودھری صاحب ہم شروع سے پوچھیں گے، آپ تو ایک کاروباری شخصیت ہے اور سیاست میں کیسے آئے؟ شروع سے لے کر ہمیں ذرا ناظرین کو بتائیے گا۔ میں جی میرے سیاست کا شوق تو بھائی وقت تھا والد صاحب کی طرف سے بھی ہے۔ جی میرے والد صاحب آپ کو پتہ ہے فاؤنڈر ممبر تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے 1968 سے، تو پھر لوکل باڈیز پالیٹکس میں والد صاحب 1979 سے کونسلر منتخب ہوتے رہے ہیں۔ پھر میرے بڑے بھائی جو سید گجر صاحب میرے والد صاحب، میں 2001 میں ضلع کونسل کا ممبر منتخب ہوا، میری دو بہنیں ضلع کونسل کا ممبر منتخب ہوئی، تو پھر ہم ایک گھر سے 5 ناظم تھے 2001 میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، سیاست تو بھائی برت ہی کر رہے ہیں۔ پھر 2004 میں جب ضمنی الیکشن آیا، پھر پورا بھرپور طریقے سے آپ نے دیکھا اس وقت عوام نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، اور اس وقت کی حکومت کے خلاف اپنے ووٹوں کی طاقت سے تو مجھے کامیاب کروایا، لیکن حکومت مشینری نے بعد میں الیکشن کا رزلٹ چینج کروا دیا۔ لیکن الحمدللہ پھر 2008 کے الیکشن میں گوجرانوالہ شہر سے میں ہی وہ واحد MP تھا جس نے PMLN کو شکست دی تھی۔ تو 2008 سے لے کے 13 تک میں MP رہا۔ پھر پارٹی نے ہماری خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سید گجر صاحب کو جو بڑے بھائی ہیں ان کو میں نے 96 سے ٹکٹ دیا، اور مجھے PP 93 سے ٹکٹ سے نوازا۔ پھر خان صاحب کی دعوت کے اوپر میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی۔ پھر کرپشن کے خلاف جانب خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی جدوجہد ان کا ساتھ دیا، چاہے دھرنے ہوں، چاہے لانگ مارچ ہو، چاہے حکومتی رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد پہنچنا ہو، ہر جگہ کے اوپر گوجرانوالہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سب سے زیادہ پارٹیسپیشن ہم نے کی۔ اور پھر آپ نے دیکھا جب خان صاحب گوجرانوالہ تشریف لائے تو GT روڈ کے لاری اڈے کے مقام پر میں نے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا، اور خان صاحب وہ مجمع دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور صرف میرے والا جلسے ہی انہوں نے ٹویٹ کیا اس دن۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور مجھے انہوں نے گھر بیٹھے ٹکٹ سے نوازا تھا۔ بالکل ان کی مہربانی ہے خان صاحب کی کہ انہوں نے میری پرفارمنس دیکھتے ہوئے مجھے گھر بیٹھے ٹکٹ سے نوازا تھا، ورنہ ٹکٹ کے لیے بڑا لوگوں کو آگے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور ہم تو ورکر لوگ ہیں، عوامی سیاست کرتے ہیں، عوام سے ہمیشہ رابطہ رکھتے ہیں، چاہے جیتے چاہے ہارے، ہم ہمیشہ عوام کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ عوام کے درمیان ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ چوہی صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز 37,000 ووٹوں کا ریکارڈ تھا انڈیا کا جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں، اور ہمیں فخر سے کہنا پڑتا ہے اور پڑے گا کہ گوجرانوالہ کی عوام نے وہ ریکارڈ توڑا ہے PTI کی گورنمنٹ میں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بعض لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی، اس پر بھی آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان کی قوم کو اور اسپیشلی گوجرانوالہ کے عوام کو یہ جو انڈیا کا ریکارڈ تھا 37,000 پودوں کا، اس کو توڑنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے شہر کے لوگوں نے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، PHA نے، جس چیز آدمی نے بھی جو بھی رول جہاں بچوں نے وہ تو اسپیشلی، اور آپ دیکھیں جس جوش اور جذبے کے ساتھ، اور جب پاکستان کا قومی ترانہ تھا تو ہمارے بچے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ بالکل ایسے یہ منظر بڑا پیارا تھا، کیونکہ ہم نے آنے والی نسل کو بھی بتایا ہے کہ پاکستان ہی ہمارے باوجود نے بڑی قربانیوں سے بنایا تھا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دن پوری فضا اور پورا گوجرانوالہ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ شجرکاری ایک اچھا کام تھا، یہ تو ہے ہی تھی، لیکن ساتھ میں جو جذبہ حب الوطنی تھا وہ بڑا قابل ستائش تھا، بڑا قابل دید تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس ریکارڈ کو توڑنے میں جس طرح ہمارے بچوں نے، اسکول کے اساتذہ کرام نے، جس طرح والدین نے، جس طرح گوجرانوالہ کے شہریوں نے، جس طرح ہماری ضلعی انتظامیہ نے، اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر سہیل خواجہ صاحب نے اس بار پور طریقے سے جو کردار ادا کیا تھا وہ بڑا قابل ستائش تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے گوجرانوالہ کے عوام کے ہاتھوں سے انڈیا کو جو ریکارڈ تھا وہ توڑوایا، اور ہمارے بچوں نے 40 سیکنڈ میں 52,000 سے ابو پودے لگائے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔
शजरकारी के बगैर आपको पता है कि आज जैसे माहौलियात के लिए आने वाले वक्तों में चैलेंजेस हैं, उनसे निपटा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन हमारी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते, तो मैं सांस नहीं ले सकते, साफ शफाफ माहौल नहीं हो सकता। लेकिन ये मेरे कायद इमरान खान का विजन था कि जब से वो क्रिकेट खेल रहा था, जब उसने सियासत शुरू की, तो उसने हमेशा आवाम को यही कहा कि दरख्त लगाएं, अपने माशरे को साफ रखें, साफ आबो हवा दें, माहौलियात को बेहतर करें। तो ये उसी विजन को लेकर हमारे कमिश्नर गुजरांवाला, डीसी गुजरांवाला, अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे और ये जो हमारे PHA के लोग हैं, जो हमारे स्कूल्स के हैं, उन सब का किरदार बड़ा ही इंतहाई आला था। और मैं उन सब डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ ऐसा अजीम किरदार अदा करने पर, अपने बच्चों को भी सलाम पेश करता हूँ। और उनकी ज़िंदगियों में ये चीज़ आज दर्ज हो गई है कि जब गिनीज बुक रिकॉर्ड लिखते हैं ना, उधर एक एक बच्चे का नाम लिखते हैं जिन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो उनके लिए एजाज़ की बात है कि वो उस शजरकारी मुहिम में, उस मुहिम का हिस्सा थे जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। और प्राउड से वो आने वाले वक्तों में कह सकेंगे हम उन बच्चों में शामिल थे जब वो बड़े होंगे कि जिन्होंने इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये भी उनके लिए बड़े फख्र की बात है और हमारे लिए भी बड़ी फख्र। चौधरी साहब, जिन्होंने मुखालफत की इसकी बयानात आपने भी सुने मीडिया पे, मैंने सुने हैं कि मुखालफत जिन्होंने की उनका काम ही मुखालफत बराए मुखालफत है, वो अपने दौर में कुछ भी नहीं कर सके। इवन के गुलशन इकबाल पार्क की मट्टी तक चोरी करके अपने डेरों पे डरवाते रहे हैं। उन्होंने शजरकारी उनका क्या काम है? और जिस तरह से PHA में जो करप्शन की है वो भी आपके सामने है इन लोगों ने। और मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे हल्के के तो एक एक बच्चा जानता है कि जो लोग मुखालफत कर रहे थे वो कहाँ से कहाँ और कैसे पहुँचे हैं। साहब ने जिस तरह लूट मार की है, करप्शन किया, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि गुजरांवाला खूबसूरत शहर हो, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि गुजरांवाला जो डिविजनल हेडक्वार्टर है इसकी जो मुनफरद हैसियत है वो कायम रहे। आपने देखा कि सियालकोट जो शहर है वो आज नंबर 1 सिटी बन गया है। मोटरवे का जो लिंक है सीधा लाहौर से वो सियालकोट के पास है, एयरपोर्ट सियालकोट में है, यूनिवर्सिटी सियालकोट में है, हॉस्पिटल सियालकोट में है। तो गुजरांवाला ने क्या किया? क्या जो PMLN के लोग हैं इनकी क्या कारकर्दगी है? 3 वजीर थे गुजरांवाला शहर से, लेकिन उन्होंने क्या किया गुजरांवाला के लिए? लेकिन मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जितना गुजरांवाला से मोहब्बत की है आज तक किसी ने नहीं की। और आपने देखा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला अभी एक्ट पास होने के लिए पंजाब असेंबली में चला गया है और नोटिफिकेशन भी हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी का काम भी हो रहा है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी इंशाल्लाह ताला बनने जा रहा है। उसके बाद स्टेडियम भी और मोटरवे लिंक जो है मोड़ इमनाबाद से लेकर सियालकोट को जो टच करेगा, जो हाफजाबाद रोड से हम मोटरवे का वज़ीर आज़म इमरान खान स्पेशल 80 किलोमीटर का इधर से कोट सरवर तक जो गुजरांवाला की आवाम को तोहफा दिया है, वो जो गुजरांवाला शेखपुरा रोड है जो ये अपने 4 सालों में शुरू ही नहीं कर सके करवा सके थे होना चाहिए। इनकी तो कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। ये तो बस आवाम को बुलाकर वोट ले गए या किसी तरह से जिस तरह से उन्होंने लिए। इनकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो इन्होंने गुजरांवाला के लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया है। इनको चाहिए था कि अगर इनको इख्तिदार मिला था तो गुजरांवाला के लोगों की खिदमत करते, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने अपने दौर में जीत के भी कभी काम नहीं किए। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, जो इसके कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, ये उनका बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं कि वो शहर हार कर भी उन्होंने इतने ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स थे गुजरांवाला को दे दिए, तो ये तो वज़ीर बन के भी नहीं दे सके। तो इंशाल्लाह ताला वक्त आ गया। जिस तरह आपने देखा कश्मीर के इलेक्शन में जो मकबूल गुजर साहब कामयाब हुए, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बनाई और भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की। इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं, अब जब देखेंगे तो गुजरांवाला में तब्दीली का सूरज इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन में गुजरांवाला शहर से भी बारिश की कामयाब। साहब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ और चौधरी साहब का मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के लिए, गुजरांवाला चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए, मोटरवे लिंक के लिए सबसे पहले इन्होंने आवाज़ बुलंद की
ये इन्होंने वज़ीर आला साहब से मुलाकातें की और इनकी वजह से, इनकी मेहनत की वजह से आज गुजरांवाला को ये प्रोजेक्ट मिले और कुछ लोग जो हैं वो उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि गुजरांवाला को चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, मोटरवे लिंक में सबसे अहम किरदार चौधरी तारक गुज्जर साहब का था, जिन्होंने इस काम के लिए बड़ी मेहनत की। जी बिल्कुल, चौधरी साहब ने हमें बहुत तफसील से ये बात बताई है। चौधरी साहब, गुजरांवाला का मजाज जो है, अब 3 साल गुजर चुके हैं पीटीआई की हुकूमत को। आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, चाहे 2 साल बाद ही हो, तो पीटीआई का, क्योंकि ये गढ़ है मुस्लिम लीग नून का कहा जाता है इसको, गुजरांवाला को, तो आप समझते हैं कि ये ऐसा, इस बारे में कुछ हमें बताइएगा कि ये मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि अभी लोगों में काफ़ी शऊर आ चुका है। अभी लोगों ने देख लिया है इनको कि इन्होंने अपने इक़्तिदार के दौर में कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला की रहमत से जब ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते हैं, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनता है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला बनती है, मोटरवेज स्टार्ट होते हैं, तो ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स साबित होंगे। इसके अलावा ये जो लाहौर गुजरांवाला शेखपुरा रोड है ये है, इसके अलावा जो गुजरांवाला शहर की डेवलपमेंट के लिए खान साहब ने पैसे दिए हैं तकरीबन 3-4 अरब रुपए के करीब, तो जो गलियां नालियां सीवरेज, स्कूल्स की अपग्रेडेशन के लिए किसान कार्ड जो हम किसानों को दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मंसूबा है। जो किसान कार्ड है, आपको पता है हमारे जो किसान भाई हैं उनको आड़तियों के पास जाना पड़ता है, महंगे रेटों पे तेल लेते थे, उधार जब लेते थे तो उनको पता है आपको किस तरह से वो खाद या बीज वगैरह देते थे। तो अब हमारी हुकूमत ने किसान कार्ड लेकर आए हैं, हर किसान को बिला सूद कर्ज दे रहे हैं। हम उसकी जान आड़तियों से छुड़वा रहे हैं ताकि हमारे मुल्क की पैदावार बढ़े। हम किसान कार्ड जिन्होंने लोग जो किसान बनवा रहे हैं उनको कुरानंदाजी के जरिए जो हमारे ज़रूरी हालात हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उनको सस्ते हालात दे रही है। तकरीबन 15-15 लाख रुपए तक के हालात की छूट दी हुई है और मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राअत बेस्ड कंट्री है। अगर हमारी ज़राअत तरक्की नहीं करेगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हम ज़री मुल्क भी हैं, इसलिए ज़राअत में भी हम काम कर रहे हैं और हमने किसान कार्ड बनाया। तारीख में इससे पहले किसी हुकूमत ने किसानों की हालत की तरफ तवज्जो नहीं दी। आपने देखा साफ जो इनकम प्रोग्राम है, बिल्कुल साफ शफाफ प्रोग्राम, जिसके तहत लोगों को गरीब लोगों की माली इमदाद की जा रही है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपने भी देखा है कि पूरी दुनिया में सराहा गया है। और इस प्रोग्राम में बिला तफरीक का ये नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि ये अगर नून लीग किया तो उन्हीं को मिलेगा। नहीं, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हो, चाहे नून लीग से हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स, सब के लिए इक्वल खान साहब ने किया, क्योंकि वो सब हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। हम चाहते हैं कि उनके मसाइल जो है हल किए जाएं। इसी तरह सेहत का, आज तक आपको पता है कि अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो उसके घर के तो बर्तन भी वो बेचने पे मजबूर हो जाता है। इलाज की सहूलत कितनी महंगी है। तो मैं इमरान खान साहब ने जिस तरह सेहत कार्ड दिया है कि 7.5 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये गेम चेंजर होगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि 31 दिसंबर तक पंजाब में भी जो आईडी कार्ड है वही सेहत कार्ड सबर हो जाएगा। हर शहरी को पूरे पंजाब को दे दिया बिला तफरीक आईडी कार्ड के मुताबिक, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। अगर जिसको जो समझता है कि उसको मदद की जरूरत है वो उससे अपना इलाज तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए का करवा सकता है। तो मैं ये बहुत बड़ा गरीबों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काम, जिस तरह आपने कहा, किसी यही नून लीग थी इस शहर में, इसकी 1 सीट थी, फिर पीपल्स पार्टी की 5 हुई, यही फिर इनकी 5 होगी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला गुजरांवाला में भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेगी। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन आ रहा है, आपने वहां से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो किस तरह देखते हैं? आपकी सियासत पर बड़ी गहरी नजर है, गुजरांवाला की सियासत पर खास तौर पर, तो कैसे देखते हैं कि पीटीआई वहां से? इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की है,
इसी तरह कंटोनमेंट का बोर्ड के जो इलेक्शन है इंशाल्लाह वहाँ से भी भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पार्टी के वो पुराने लायल हैं, पुराने वर्कर हैं, पहले भी मेंबर्स कंटोनमेंट बोर्ड में रह चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कंटोनमेंट बोर्ड में भी बड़ी बारीकी से पीटीआई कामयाब होगी। जय साहब, एक आप सीनियर वर्कर हैं पीटीआई के, तो मैं अहम सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि 3 साल गुजर गए हैं और डीसी गुजरांवाला की और कमिश्नर गुजरांवाला की आप तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 3 साल बाद ब्यूरोक्रेसी जो है वो आखिरकार जो है अंडर में आ रही है। मैं समझता हूँ जी इमरान खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी को फुल सपोर्ट किया है, उन्होंने इनको कॉन्फिडेंस दिया है। तो ब्यूरोक्रेसी और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन टिकट होल्डर्स हैं मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और अगर अच्छे तरीके से काम हो रहा है तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी पूरी आवाम की ब्यूरोक्रेसी है, वो हर एक के लिए, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए। उसी तरह अब हुकूमत के साथ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने जो हुकूमत का एजेंडा होता है उसको फॉलो करना होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एजेंडा तो फलाही एजेंडा है, ये कोई कारोबारी एजेंडा नहीं दिया। ना इमरान खान साहब की कोई फैक्ट्री है, ना उनके कोई दूध के कारखाने हैं, ना उनकी कोई चीनी की मिलें हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी मियां साहब। चोई साहब ये बताइएगा कि जिस तरह खान साहब जब वजीर आजम बने तो उन्होंने लोगों से कहा अपनी पहली दूसरी स्पीच में कि आपको 2 साल तक जो है वो कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे और आवाम को जो है वो सब्र करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ जाके उनके लिए बेहतरी होगी। तो आवाम ने, पाकिस्तानी जो आवाम है उसने, उन्होंने खान साहब का साथ दिया, बल्कि 2 साल नहीं 3 साल तक उन्होंने कड़वे घूंट पिए और खान साहब ने बाद में कहा कि आपने घबराना नहीं है। अब 3 साल गुजर गए हैं, आने वाले दिनों में जो हुकूमत के हैं अभी 2 साल बाकी हैं, तो आप समझते हैं कि लोग खुशहाल भी होंगे? और जो खान साहब ने कहा था कि आपने 2 साल घबराना नहीं है, लोगों ने सब्र किया, 3 साल तक नहीं घबराए, उनको कोई रिलीफ मिलेगा, उनके लिए बेहतरी आएगी? सबसे पहले तो मियां साहब मैं आपको बताता चलूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, आप एक बाशऊर आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था। इन्होंने इतने ज़्यादा कर्जे ले लिए थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना सबसे मुश्किल काम था। फिर इमरान खान साहब बाहर निकले, मुख्तलिफ उन्होंने दोस्त ममालिक के दौरे किए, वहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा किया और फिर वो पैसा इकट्ठा करके अपने कर्जे हमने उतारे ताकि हमारा मुल्क डिफॉल्ट से बच सके। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई घराना हो या मुल्क हो, उसकी इकानमी ख़राब हो, की सूरत ख़राब हुई हो, उसको ठीक करने का कुछ वक्त चाहिए होता है। ये वो खराबी हैं जो कि इस सिस्टम में ऐसे दाखिल कर दी गई हैं कि हमारा मुल्क इन माशी मसाइल से निकल ही नहीं सका था। तो ये मैं समझता हूँ खान साहब ने जिस तरह आके जो डॉलर है उसको ओपन छोड़ा है, उससे ठीक है, रुपये की कीमत बढ़ी है, लेकिन कौन जो एक्चुअल प्राइस है इसको ज़बरदस्ती से कंट्रोल नहीं किया गया कि मुल्क को खसारे में लेके जाते जाएं और डॉलर की कीमत में कंट्रोल ज़बरदस्ती रखें। स्टेट बैंक को कह के नोट छापी जाए, हम अफरात-ए-ज़र का शिकार करी जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये भी फैसला किया और आपने देखा कि उन जो हमारे माशी मसाइल थे, आज हम उन माशी मसाइल में से काफ़ी से निकल चुके हैं और आज हालात पहले से काफ़ी बेहतर है। हमारी जो इकानमी के इंडिकेशंस हैं वो बेहतर हैं। आज हमारी स्टॉक मार्केट भी बेहतर है, आज हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर हैं, आज हमारा जो करंट अकाउंट खसारा था वो भी पहले से बेहतर है। तो इंशाल्लाह ताला जब भी किसी घर को ठीक करना हो तो मुश्किल हालात का तो सामना करना पड़ता है और कौमें कुर्बानी से ही बनती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि लोगों को महंगाई के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो। और सबसे ज़्यादा आपको भी पता है, आपने भी खान साहब के इंटरव्यू सुने या देखे हैं, वो भी चाहते हैं कि महंगाई का खात्मा, वो सबसे ज़्यादा महंगाई से ही उनको पता है कि अवाम मेरी जो है इस वक्त तकलीफ में है, वो महंगाई की तकलीफ को ही दूर करना चाहती है। तो काम वो भी कर रहे हैं और हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान के माशी जो हालात है
वो पहले से बेहतर हो, हमारी आवाम को महंगाई से छुटकारा मिल सके। जी बिल्कुल जय साहब, बात आपकी ठीक है। लास्ट में मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे वाला कि अवाम और पाकिस्तान वाले ये सुन रहे हैं कि इमरान खान ने नो डू मोर का जो नारा लगा दिया है, अब अमेरिका का साथ नहीं दिया जाएगा, इसी वजह से अफगानिस्तान में क्राइसिस आ रहे हैं और वो उनसे संभल नहीं हुकूमत रही। तो आप बताएं कि पाकिस्तान का मराल तो बुलंद है कि, और लोगों ने भी इमरान खान का खुल के साथ दे रहे हैं कि इमरान खान पहला वो सियासतदान है जिसने साफ अल्फाज में नो कह दिया। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने दो टोक उन्हें जवाब दिया कि हम अड्डे नहीं देंगे। इस पर आवाम बड़ी खुश है। तो अपने लीडर के इस अफगानिस्तान बड़े की फैसले बिगड़ती पर सूरत हाल में आपको कुछ समय है। इस हवाले से मैं आपको कहना चाहूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको दोबारा से रिविजिट किया गया है। हमने जो अपने हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किया है। ईरान के साथ हमारे पहले से मामला अच्छे हैं। हमने चाइना के साथ, जैसा कि आपको पता है, चाइना के साथ हमारी दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से भी बुलंद है। उनके साथ सीपैक के तहत चाइना पाकिस्तान में काफ़ी डेवलपमेंट में हमारी मदद कर रहा है। बिल्कुल। और इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में भी, चाहे यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की ये मदद का मसला हो, चाइना हमेशा हमारा बिल्कुल काबिल एतमाद हाजिर है। चाइना पाकिस्तान उनके साथ हमारे हालात बेहतर हुए। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान को जब कहा गया कि उधर पाकिस्तान कभी भी अफगान जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन इसको बार बार उसमें घसीटा गया। और अब जब फिर कहा गया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे अदारों ने, उन्होंने जब मिल बैठ के ये फैसला किया कि हम किसी पराई जंग में इस्तीफा नहीं खोदेंगे ताकि हमारे मुल्क का नुकसान ना हो। और हमने कहा हम जंग का हिस्सा नहीं है, हम अगर अमन मुज़ाकरात आप करना चाहते हैं तो उसमें हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो फिर आपने देखा दोहा में जिस तरह से मुज़ाकरात हुए, हमने फैसिलिटेट किया। तालिबान मुज़ाकरात करना नहीं चाहते थे, हमने कोशिश करके इनको एक में से उठा के अफगान हुकूमत के साथ इनको बिठा दिया है, मुज़ाकरात करें। और आपको पता है कि पाकिस्तान सिर्फ फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के मामला में कभी मुदाखलत नहीं करता। हमारी जो पॉलिसी रही है, हमारे खारजा पॉलिसी हमारे मुल्क की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये अदम तशद्दुद के ऊपर मबनी है। हम हर मुल्क में अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई नुकसान हो। तो इसी तरह से जब उन्होंने कहा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अड्डे देने से इनकार कर दिया और उनका एब्सोल्युटली नॉट। तो वो पूरी दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब अवाम का अतमाद हासिल हो, जब अदारे एक पे हों, जब कौम की सोच एक हो, जब कौम के लीडर जो है वो ईमानदार हों, तो फिर ही किसी के साथ इस तरह से बात की जा सकती है। वरना तो यहाँ पर एक टेलीफोन कॉल पे भी हुक्मरान अमेरिका के आगे कभी नो नहीं बोल सकते। जी जय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अमल का, आपने तफसील से जो हमें बात बताई। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।